ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स. Verbal, the method of communication, I told you that there are three types of methods: verbal, non-verbal and visual communication. तो वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इन द वर्बल कम्युनिकेशन we always talking and using the words. The words are very important in the verbal communication. क्योंकि हम जब हम बात करते हैं, ऑरली बात करें या लिख के बात करें, हम वर्ड्स को यूज में लेते हैं, और वर्ड्स अगर सही यूज में नहीं लिया है तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग verbally. Now the verbal communication also are two types: oral communication, जिसमें हम फेस टू फेस या टेलीफोन पे बात करते हैं, या written communication. So these both are the types of verbal communication. See, there is a table I already given these PDFs to you. There are some example. If we are sitting face to face and talking, then it is a verbal communication. Or in the group discussion, जैसे अभी हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ वर्बल कम्युनिकेशन. घर में भी फैमिली के साथ हम बैठे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, पब्लिक में किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या पब्लिक स्पीच दे रहे हैं कोई, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, these all are the kind of the verbal communication or oral communication. If you're talking to the phone, if you are doing job somewhere, और आप अपने क्लाइंट से, कस्टमर से फोन पे बात करते, ऑफिशियल टॉक कर रहे हैं, या फैमिली से नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन. और अगर ऑफिशियली बात कर रहे हैं तो हम थोड़े फॉर्मल वर्ड्स यूज में लेंगे. फोन पर हेलो से स्टार्ट करते हैं, बाद में थैंक यू, बाय करके हम रखते हैं फोन. So these all are the etiquettes to talk on the telephone. And there are, if you are talking officially, you have to use formal language. If you are talking to family and friends, then you can be informal. क्लासरूम में जब भी हम टीचिंग होती है, या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में है, तो इफ यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन, दिस इज द ऑल्सो अ काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. So all are in the class, teacher is teaching and all are is listening. Now also we are doing oral communication. So this is also the kind of oral communication in which anyone can give presentation or anyone can teach any other people. So one is the sender and all are the listener. Who is listening are receivers. If we talk about the written communication, where we are doing sending letters, emails, SMS in the phone, there are short message service SMS. जो अभी तो हम WhatsApp ज़्यादा यूज में लेते हैं, क्योंकि if you are having internet connection, and it is very cheap method to communicate with the WhatsApp for any kind of this messengers. So we can send immediately any kind of photos, audios, videos through the chatting and through the email. So these are method we nowadays we are using to share our information, news, thought through WhatsApp chatting. And if official letter is there, then we can use email facilities. We can share news through newspaper and television also. We can share. Ma'am, your voice is not audible. वॉइस नहीं आ रही है? आ नहीं रही है, क्लियर नहीं आ रही है. मैम क्लियर ही आ रही है. क्लियर नहीं आ रही. सबको नहीं आ रही है, तुम्हें ही नहीं आ रही, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट मैम क्लियर आ रही है. आ रही है ना. तो तुम्हारा जिसको नहीं आ रही है, इसका इंटरनेट प्रॉब्लम है. So we are getting information
through newspaper, books, magazines also. So this is also a part of written communication from where you are getting information. अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि हम जब फेस टू फेस टॉक कर रहे हैं तो आप जो भी बात कर रहे हैं इमीडिएटली सामने वाला सुनेगा, जवाब देगा, आपको तो इमीडिएट रेस्पॉन्स मिल जाता है। लेटर तो आप लिखेंगे तो अगला पढ़ेगा तब जवाब देगा, अगर ऑन ईमेल सेंड किया तो वो ऑनलाइन आएगा, पढ़ेगा तभी रेस्पॉन्स देगा। लेकिन फेस टू फेस टॉकिंग में एडवांटेज ये है कि द पर्सन विल लिसनिंग यू क्विकली एंड क्विकली द पर्सन कैन गिव यू रिप्लाई ऑल्सो। और बात करते करते टॉपिक कहीं भी चेंज हो जाता है तो कम्युनिकेशन का वे भी चेंज हो जाता है। तो the quick response, quick feedback you can get when you are doing verbal communication, means in verbal also the oral communication। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बात करते समय अगर आपके कल्चर डिफरेंस है तो कई बार इंफॉर्मेशन, जैसे कल भी मैंने बताया था कि कुछ और देना चाहिए, समझ कुछ और आ जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम होती है ओरल कम्युनिकेशन में कि सामने वाला आपके वर्ड्स फ्रेजेस जो आप यूज में लेते हैं वो समझ नहीं पाता है। एक्सेंट हम जो भी यूज में लेते हैं वो कल्चर डिफरेंस की वजह से एक्सेंट समझ में नहीं आता। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन। कल मैंने बताया था पब्लिक स्पीकिंग में कई लोगों को फियर हो जाता है कि हम एक क्राउड को फेस करके नहीं बोल सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग नर्वस if they face the big crowd and if they have to give speech in a big crowd, and they are getting some fear about it. They are not confident to speak effectively in the public because of the nervousness। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप अपने आप को 3 पॉइंट से प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। जो भी आप बोलना चाहते हैं, पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन देना है, क्लास में आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है या स्कूल में आपको असेंबली में कुछ थॉट डिलीवर करने, तो फर्स्ट यू प्रिपेयर योरसेल्फ। अपना टॉपिक जो है वो खुद उसको समझे, खुद उसकी डिटेल स्टडी करे, अपने आप में कॉन्फिडेंट बने। then you practice at home in front of your parents, in front of your best friends। तो वो आपको सुने, आपकी गलती निकाल के आपको बताए पहले से। तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंट, उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद में आप परफॉर्म करें पब्लिक के सामने। तब भी अगर नर्वसनेस हो रही है तो स्टार्ट विद अ डीप ब्रेथ, देन बी कॉन्फिडेंट इनसाइड यू। आप सोचिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं और उसके बाद परफॉर्म करें। तो दीज 3 पॉइंट्स वी हैव टू टेक केयर इफ यू आर फीलिंग नर्वस इन द पब्लिक। So prepare, practice and perform are the 3 points that should be taken in care। तो ये तो थे वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम ऑरली और रिटर्न बात कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कई बार हमें कोई बात समझने के लिए कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे क्लास में कोई बच्चा एकदम शांत क्लास है, टीचर पढ़ा रहा और किसी एक बच्चे ने कुछ किया और टीचर ने सिर्फ आंख दिखा दी, तो आप समझ जाएंगे कि वो गुस्से में है और आपको चुप रहने के लिए कह रहे हैं। या फिंगर अपने लिप पे लगा के आपको इशारा किया चुप रहने का, तो आप समझ जाएंगे कि आपको चुप रहना है। तो विद द हेल्प ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, आई एक्सप्रेशन या हाथों के एक्सप्रेशन, इन सारे एक्सप्रेशन सामने वाले से आप कुछ इंफॉर्मेशन बिना कोई वर्ड्स यूज ले ही समझ जाते हैं। उनके बॉडी पोस्चर से, गेस्चर से, एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन। So these by watching these expression we are getting some information without using any words। So that is called non-verbal communication। और मोस्टली जब हम ऑरली कम्युनिकेट करते भी हैं तो इन गेस्चर पोस्चर से हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन
ले लेते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह को देख के हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। अब उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सी द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स तो हैं वो बहुत ही कम यूज में आ रहे हैं। वॉइस का टोन भी, जब हम बात करते हैं जो हमारा वॉइस का टोन है वो बार बार चेंज होता है, तो उस वॉइस के टोन से भी पता चलता है कि आप एक्साइटमेंट में बात कर रहे हैं, खुशी में बात कर रहे हैं, दुख में बात कर रहे हैं। तो यू कैन गेट इंफॉर्मेशन बाय द वॉइस टोन ऑल्सो, दैट विच इन विच काइंड ऑफ मूड यू आर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे। हैंड मूवमेंट और गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि जब सामने आपको कोई फर्स्ट टाइम मिलता है, आप हाथ आप ऊपर करते हैं तो आप मतलब हेलो बोल रहे हैं, तो नो नीड टू यूज सम टाइम एनी वर्ड, दे कैन अंडरस्टैंड। हाथ जोड़ रहा है मतलब नमस्ते कर रहे हैं। क्लास में भी अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करने का मतलब है कि स्टूडेंट वांट टू आस्क समथिंग। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने गर्दन को नहीं में हिलाएंगे, राइट एंड लेफ्ट, मीन्स यू डोंट नो द आंसर। अगर आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहा है सामने क्लास में और अगर आपने सर को ऊपर नीचे हिलाया है मतलब आप समझ रहे हैं, ये आप टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। अगर हाँ में सर हिला रहा है तो। गुस्से में हम पॉइंटिंग करते हैं फिंगर को, एंगर में अगर आपको कोई आंखें दिखा के आपकी तरफ फिंगर पॉइंट करे तो आप समझ जाते कि वो गुस्से में है, आपको गुस्सा शो कर रहा है। तो these kind of gestures and postures you can understand what the person want to say without using any words। एक्सप्रेशंस देख के अगर सामने वाला आपकी बात सुनकर स्माइल कर रहा है तो आपको लगेगा कि उसको अच्छा लग रहा है जो आप बोल रहे हैं। अगर सैड फेस बना रखा है अब तो आपको लगेगा सामने वाला अपसेट है और उसको अभी मजाक करना उसके साथ या हंसी की बात करना सही नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ देयर फेशियल एक्सप्रेशन आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख के आपको पता चल जाता है कि उसको आपसे बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप अपना कम्युनिकेशन का वे चेंज कर लेंगे उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर। So by this is all kind of the non-verbal communication where you are not the person is not using any words but you are getting information by watching them। ऐसी कोई स्पीकर है वो बोल रहा है, बोलना चाह रहा है कुछ इंफॉर्मेशन, सेंडर जो है वो रिसीवर को इंफॉर्मेशन दे रहा है बाय ऑरली टॉकिंग। और उसके साथ में जो हैंड मूवमेंट्स, हम जब हम भी कोई किसी से बात करते हैं तो एकदम स्ट्रेट बैठ के तो बात करते नहीं, अपने साथ में हैंड मूवमेंट होते रहते हैं। हैंड मूवमेंट्स भी होते हैं, हमारी वॉइस टोन ऊपर नीचे होती है, हमारे खुद के फेस पर एक्सप्रेशन आते हैं। तो उनसे जो है वो जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, उस सामने वाले को ज़्यादा समझ में आता है हमारे हैंड मूवमेंट एक्सप्रेशन वगैरह को देख के। कई बार नॉइजी एरिया में जब हम होते हैं, जैसे मैंने बताया था पार्टी में डीजे साउंड है, ऑर्केस्ट्रा, लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो आप बोलेंगे ऑरली तो कोई सामने वाला समझेगा नहीं, तो उस समय भी आप इशारों से अपनी बात को रख सकते हैं। तो जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं उसके इशारों से कई बार हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से जनरली यही पता चलता है कि आपका मूड कैसा है, हैप्पी है, सैड है, स्माइल कर रहे हैं, तो आपको बात पसंद आ रही है। जनरली क्या करना चाहिए, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आप किसी के साथ, तो यू हैव टू कीप योर फेस रिलैक्स्ड, और आप जो जिस तरह की बात कर रहे हैं आपके एक्सप्रेशन उससे मैच करने चाहिए। नहीं खुशी की बात कर रहे हो और मुंह सैड बना रखा है तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कहना क्या चाह रहा है। एग्री किसी के साथ है तो सर को नोट करें, डिसएग्री है तो मना में सर हिलाएं।
तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है उससे आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है। पोस्चर में कई बार हम अगर सिर पे हाथ रख के कोई बैठा है मीन्स वो टायर्ड है या कोई बात से दुखी है। यू कैन गेट इंफॉर्मेशन बाय वॉचिंग देयर पोस्चर्स। अगर कोई सीधा स्ट्रेट बैठ के आपसे बात कर रहा है मीन्स द पर्सन आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो जनरली पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, बॉडी जो है अपर बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, सीधा स्ट्रेट बैठ के हाथों को भी रिलैक्स पोजीशन में सीधा रख के बात करें। तो दिस इज द एटिकेट्स टू कम्युनिकेट विद समवन। तो अगर आप शोल्डर स्ट्रेट और स्ट्रेट बैठ के बात करेंगे तो लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन हैं और कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। वेविंग, पॉइंटिंग, इन सब इशारों से भी आप इंफॉर्मेशन, जैसे भी एग्जांपल दिया मैंने, रेजिंग हैंड, यू वांट टू आस्क समथिंग, बाइटिंग नेल्स, अब नेल बाइट कर रहा है कोई इंसान बैठ के तो आपको लगेगा ये नर्वस है। तो कई एक्सप्रेशन, कई गेस्चर्स हमारे ऐसे होते हैं जिसको देख के बिना कुछ कहे ही सामने वाला समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस मूड में है, नर्वस है, हैप्पी है, कुछ पूछना चाह रहा है, एग्री है, डिसएग्री है। यू कैन नो टू सी देयर गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। कुछ एटिकेट्स होते हैं गेस्चर्स से कि कोई किसी इंसान के बारे में आप बात भी कर रहे हैं, आपके सामने से निकला है तो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके बात नहीं करना चाहिए। किसी के साथ बात कर रहे हैं तो पॉकेट में, अपने हैंड पॉकेट में डाल के बात करना एटीट्यूड दिखाता है। यू हैव टू कीप योर हैंड स्ट्रेट व्हेन यू आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। किसी की बात आप ध्यान से सुन रहे हैं, ये इसको शो करवाना चाहते तो थोड़ा अपना हेड बेंड करें, तो उससे लगेगा कि आप उसकी बात पे अटेंशन दे रहे हैं, थोड़ा सा झुक के उसकी बात सुनेंगे। तो these all the basic etiquettes of the gesture and body language when you are communicating with someone. जब हम हैंड शेक करते हैं, किसी के साथ फर्स्ट टाइम मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हैंड शेक करते हैं, तो उसमें भी हैंड शेकिंग में जो है वो फर्मली हैंड शेक करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रांगली, तो उसको लगेगा कि पर्सन जो है वो कॉन्फिडेंट है। तो हैंड शेकिंग से जो टच होता है उससे भी आपको कई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आप, टीचर भी आपके बैग पे अगर पैट कर रहा है, अगर आप गेम्स खेलते हैं आपकी बैग को, जैसे कोचेस वगैरह बैग पे पैट करते हैं, उससे आप मतलब वो आपको एनकरेज कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं जब भी आपकी बैग पे कोई पैट करता है। तो इस टच से भी आपको कई इंफॉर्मेशन बिना कुछ कहे ही मिल जाती है। तो for that purpose also you have to take care whenever you are shaking hand with someone, you have to shake hand firmly। और बात करते समय अपने बालों को संवारना, कपड़ों को ठीक करना, ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिससे आप कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते सामने वालों। तो यू हैव टू टेक केयर व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग, some formal communication is going on, then you have to taking care of these things, that you sit straight and talk, or not to doing any other activity, it will be distracting the people who is talking to you। कई बार हम लोगों की, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसके जो बीच में जो गैप है उसको देख के पता चल जाता है कि उनके रिलेशन कैसे, से फ्रेंड आपस में बात करें, बेस्ट फ्रेंड है तो एकदम पास में बैठेंगे, आपस में टच करके बात करेंगे, ताली मिलाएंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दे आर फ्रेंड्स। वही अगर आप डिस्टेंस में बैठे हैं मीन्स आपके साथ जो दो लोग हैं वो आपस में इतना क्लोज कनेक्शन नहीं है, उनमें फॉर्मल कनेक्शन है। अगर उनके बीच में स्पेस है तो दो लोगों के बीच की स्पेस को देखकर आपको पता चलता है उसकी इंटीमेसी क्या है, कितने क्लोज है वो आपस में। तो दैट ऑल्सो यू कैन observe yourself, no need to say something for that। तो
तो अगर आप इसमें भी एटिकेट्स जो फॉलो करने, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं है तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है, घर में पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ आप क्लोजनेस रख सकते हैं, पास में बैठ सकते हैं, टच करके बात कर सकते हैं। बट if the person is not close to you, then you have to make distance with them. Eye contact, I already told you. Then if you're talking to someone and if you are making eye contact and then you are sharing some information or idea, then you will be a confident person. आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। इधर आप कोई आपसे कुछ समझा भी रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं तो आप उसको इग्नोरेंस शो कराएंगे कि आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप आई कांटेक्ट करके सुनेंगे तो लगेगा कि आप इंटरेस्ट से बात कर रहे हैं। तो हमेशा जो आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी तरफ देखकर बात करें, रिलैक्स प्लेजेंट लुक दें और बीच बीच में अपना लुक चेंज करें, यूं नहीं कि लगातार घूरते ही रहे। आई कांटेक्ट रखें पर अपने लुक को बार बार चेंज करें। टोन ऑफ द वॉइस से बहुत फर्क पड़ता है। बात करते करते कोई एक्साइटमेंट या कोई खुशी की बात आती है तो हमारा टोन थोड़ा फास्ट हो जाता है। नर्वसनेस की बात या कोई दुख की बात आती है तो हमारा टोन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये जो टोन ऑफ द वॉइस, कोई भी आपस में जब बात करते हैं तो और जो टोन है वॉइस का वो हमेशा सेम नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दैट फीलिंग इनसाइड, द मूड इनसाइड। So this changing of tone should be there. So the person जिसके साथ आप बात करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट आएगा आपकी बात में और आप वो आपकी बात आपके वॉइस टोन से ही समझ जाएंगे। बात करते करते अगर आप किसी पे गुस्सा है, किसी थर्ड पर्सन ने डिस्टर्ब किया तो आप एंगर में उसके शाउट करेंगे। तो शाउटिंग इज टू शो द एंगर। So always we are changing our tone when we are communicating. तो जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस समय आपका वॉइस टोन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नहीं, ना तो ज़्यादा फास्ट बोलना है ना ज़्यादा स्लो बोलना है। इट विल बी प्रॉपर टोन ऑफ द वॉइस व्हेन यू आर डूइंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन विद समवन। So these all are the example of non-verbal communication where the words are not so important. The important is the body posture, the tone of voice, the contact of eyes, the facial expression, the gestures. So these all are the important in the non-verbal communication. Lastly, थर्ड पार्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम बातों को इमेजेस को देखकर, पिक्चर्स को देख के, सिंबल्स को देखकर ही कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हमें समझ में आ जाती है बात बिना कुछ कहे। जैसे कि आपने पब्लिक प्लेस पे ये सारे सिंबल्स देखे होंगे। ट्रैफिक सिग्नल हम जाते हैं, हम रोड पे, वी आर गोइंग समवेयर एंड अगर रेड लाइट आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको गाड़ी रोक देनी है वहीं पर। कोई आपके कान में बोलने नहीं आएगा कि गाड़ी रोकनी है। यू विल सी द सिग्नल एंड यू विल स्टॉप immediately. Yellow light means you have to wait, and if green light is there then you have to go. So these general public symbols are giving you some information. कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, आप देखकर समझ जाएंगे। इसी तरह से कई जगह नॉट टू ब्लो हॉर्न के सिंबल इस तरह से होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स के पास से निकले हैं। तो कई जगह ऐसे जहाँ पे साइलेंस होना जरूरी है तो वहाँ पे इस टाइप का सिंबल मिलेगा, तो आपको हॉर्न नहीं बजाना है। कहीं पर भी आप पब्लिक प्लेस में टॉयलेट्स यूज में लेते हैं तो वहाँ पे मेल और फीमेल का सिंबल इस तरह से बना होता है, तो आप समझ में आता है कि इधर मेल को जाना है, इधर फीमेल को जाना है। नहीं, अगर वर्ड्स में नहीं भी लिखा है तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय वॉचिंग द इमेजेस। जहाँ पे ये रेलवे क्रॉसिंग पे इस तरह का सिग्नल होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, आपको रुकना है। अगर गेट बंद है तो आपको वेट करना है जब तक कि ट्रेन चली न जाए।
इस टाइप का सिंबल होगा जहाँ पर भी मतलब कि यहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर कोई तरह की लाइटर या माचिस वगैरह यूज में नहीं लेना है, आग पकड़ सकता है। तो इस तरह के सिंबल को देख के हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। नो स्लिपरी सरफेस, साइन ऑफ स्लिपरी सरफेस होता है जहाँ पे आपको देख के चलने के लिए इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ पे आप स्लिप हो सकते हैं। We are watching audio, we are listening audio songs also और watching movies also। उसमें आप प्ले साउंड, पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, रिवर्स, ये सारे बटन्स हैं। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप बटन्स को देखकर ही आपको पता चल जाता है कि ये बटन का यूज क्या है। तो दिस आर द जनरल सिंबल्स, तो ऑल आर अवेयर अबाउट दीज सिंबल्स, इमेजेस। तो नो नीड टू मैम राइट इन वर्ड्स। यस, हेलो। मैम एक बार आप मर्ज मेल्स का ऑप्शन और मर्ज डॉक्यूमेंट समझा दोगे? MS वर्ड का है, बस थोड़ा थोड़ा। मेल जी वर्ड। यस मैम। हाँ, समझा देंगे बिल्कुल। यस। नेक्स्ट क्लास जब भी हो याद दिला देना स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी तो टाइम ओके खत्म हो रहा है। When I take next class, in the starting you remember, tell me that I will explain you, okay? वैसे वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, वहां से भी देख सकते हो। कई बार इस तरह का साइन आता है जिसमें जो है कई बार ट्रेन्स में और नो स्मोकिंग जोन्स के लिए साइन लिखा होता है कि आपको स्मोक नहीं करना है इस एरिया में। तो दीज ऑल काइंड ऑफ साइन which you can get information without watching any words or using any words, you can get information। ऐसे ही विजुअल कम्युनिकेशन में चार्ट्स जब बनते हैं, हम एक्सेल यूज में लेते तो टेबल से हम चार्ट्स बनाते हैं, इमेजेस ड्रॉ करते हैं। तो इन सबको देखकर जो भी इंफॉर्मेशन हम गेट कर ले लेते हैं थ्रू द इमेज, चार्ट्स, ग्राफ्स। तो दीज ऑल आर काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम कोई इमेज को देखकर ही इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है बिना कुछ कहे। इसके बाद कम्युनिकेशन चैप्टर में राइटिंग स्किल्स पता है कि किस तरह से वर्ड्स, जब लेटर लिखते हैं तो हमें ऐसे वर्ड्स यूज में लेने चाहिए जो कि समझ में आए। प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह लगाने चाहिए। कैपिटल, जहाँ पे वर्ड कैपिटल है वहाँ कैपिटल यूज में ले, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आए, ये सब बातों का ध्यान रखना है। दिस जनरल इंग्लिश यू नो, so no need to I think revise this noun and pronoun etc. This is part of English. So in the next class we will start revising the self management skill, because we, मैम आप किस दिन periodic डिस्कस कर लोगे क्या? क्या वापस बोलना। मैम आप किसी दिन पीरियोडिक वन में जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर। पीरियोडिक वन में जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम्स में। हेलो। हाँ, यस बोलो। मैम आप वो वाले किसी दिन उनके आंसर बता दोगे हाँ डिस्कस बिल्कुल। करने के लिए? कौन से वो क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, ओके। ठीक है। ओके मैम। सो दिस फर्स्ट लेसन में जो मेन है कम्युनिकेशन स्किल्स के एलिमेंट, मेथड, आई हैव रिवाइज्ड दिस। in next class we will revise the self management skill, because the remaining part is of English part only, so that you already know, no need to revise. So self management skill we will revise in the next class. And anything else like this mail merge or anything else, if you want to ask you can ask, so I will tell you, okay? So today